Now, the next topic that we are going to come across is the reasons for the destruction of wildlife. So you can write the question here. State the reasons for the destruction of wildlife. State the reasons State the reasons for the destruction of wildlife. Or the second question can be, there is a rapid decrease. There is a rapid decrease of forest cover in India. Of forest cover in India. This is a matter of concern. This is a matter of concern. Explain. Should I repeat? There is a rapid decrease of forest cover in India. This is a matter of concern. Explain. Okay. So there are two questions, but you must understand that both the questions we have the same answer. Okay. So now mark the answers, and in the same time we'll explain also. Let's try to explain it. The first point is, due to human interference in the grassland and in watershed areas of forests, the natural habitat of wild animals is put in danger. First point. Now here human interference, because man is interfering into the forest areas. There were lots of forest areas, and the grasslands, forest areas, man started interfering. They wanted to make their houses, try to get other things. So in doing so, the humans started interfering and took away their grasslands. They also started taking away the watershed. What is watershed? Maybe a pond, lake, river, part of that. We started taking that also. And all these things are in the forest. Yeah, in the natural habitat where the natural animals are staying. So all these things we are taking for our own use. When we are taking for our own use, what is happening? The wild animals' life is put into danger. We are not putting ourselves into danger. Our life is not put into danger, but we are putting their life into danger. Okay, this is the first point. Next, second, destruction of forest is the main reason responsible for the natural imbalance. What is the main reason responsible? Destruction of forest. What is destruction of forest? Cutting down of forest, cutting down of trees. ठीक है, जो हम लोग ट्रीज को कट करते हैं हमारे यूज के लिए, तो उसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट. ठीक है, वो डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हमारी प्रगति के लिए हो सकता है, फॉर आवर डेवलपमेंट, फॉर आवर हाउसिंग प्रोजेक्ट, or maybe for to set up a factory. Okay, for all these things we are doing it. So the destruction, the main reason is destruction of the forest. Its final impact is the reduction in the number of wild animals, and gradually what will happen, the number of wild animals will gradually become
लेस, धीरे धीरे उसके नंबर भी कम होता जाएगा। ठीक है। सेकेंड, नेक्स्ट पॉइंट, hunting the animals to obtain hair, skin, bones, horns, or nails are also responsible. Next point, hunting of the animals. You may have come across that people living Raja Maharaja ke time pe, where the kings were there. During those times, people used to go for hunting. The kings used to go for hunting into the villages. ठीक है, तभी भी नहीं, अभी भी आजकल आज भी होता है, हंटिंग इज डन, मे बी टू वन फॉर प्लेजर। ड्यूरिंग व्हेन द किंग्स यूज्ड टू स्टे, दे यूज्ड टू डू इट फॉर प्लेजर। ताकत दिखाने के लिए उन लोग हंटिंग के लिए जाते थे और वाइल्ड एनिमल्स को मार देते थे। ठीक है, फिर क्या हो गया, फिर उनको पता चलने लगा कि एनिमल्स के जो स्किन है दैट इज वेरी, इट इज वेरी कॉस्टली। तो वो लेदर के लिए उन्होंने स्किन निकालने के लिए दे स्टार्टेड हंटिंग द एनिमल्स। किस बोन्स के लिए, हॉर्न्स के लिए, हॉर्न हॉर्न ऑफ द राइनो, मे बी द एलिफेंट्स हॉर्न्स, है ना, नेल्स नेल्स ऑफ द टाइगर। आपने पुराने पिक्चर्स अगर पिक्चर देखा है, या राजा महाराजा के जो घर महल होता है उसमें यूजुअली हम लोग को देखने को मिलता है, उनके घर पे हम लोग एंटर करते हैं तो घर के अंदर का जो सीन होता है वो ऐसा दिखाते हैं कि किसी का हेड, कहीं पे डीर का हेड, लायन का हेड होता है, या टाइगर का हेड सब रखा होता है, या टाइगर का जो स्किन होता है उसका कारपेट होता है। संत महाराज जो पूजा पाठ करने बैठते हैं तो वो टाइगर स्किन पे बैठे रहते हैं। तो फॉर सम और दी अदर रीजंस एनिमल्स आर किल्ड। ठीक है, देर आर लॉट्स ऑफ एनिमल्स किल्ड फॉर ऑल दिस पर्पसेस। स्किन, और मोस्ट ऑफ द एनिमल्स स्किन आर यूज्ड टू मेक लेदर। लेदर के हमारे पास बेल्ट, पर्स, मेनी थिंग्स आर अवेलेबल। सो एनिमल्स आर किल्ड फॉर ऑल दिस थिंग्स। सो what is the next reason, important point? Hunting of the animals. Understood? Skin का दूसरा नाम है hide. Okay, next point, add the over exploitation of forest made by man for his greedy motives such as roads, multi-purpose project, mining, minerals, expansion of new settlements or cities, etc. displace the wild animals. So what is the next point here? Over exploitation of forest, and that is made by man, and it is for his greedy motives. As I already told you in the last class, I told you about Array Forest in Mumbai. ठीक है, Array Forest in Mumbai, where to be उसका एक पार्ट पूरा उन लोग ट्रीज को कट डाउन करने वाले थे। फॉर व्हाट पर्पस? फॉर द मुंबई मेट्रो प्रोजेक्ट। बट देन उसमें बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, तब जाके वो खत्म हुआ। ठीक है, नहीं तो उन लोग वो पूरा कट करने वाले थे। तो क्या क्या यहाँ पे, रोड बनाने के लिए, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है। ठीक है, माइनिंग मिनरल्स, माइनिंग का मतलब मिनरल्स फाइंड आउट करना, अर्थ में से फाइंड आउट करना, तो माइनिंग करना पड़ता है। एक्सपांशन ऑफ न्यू सेटलमेंट्स, चलो यहाँ पे जगह कम हो गई, जैसे आप देख सकते हो पहले सूरत बहुत छोटा था, आज देखो कि वेसू साइड, पहले पूरा वेसू साइड क्या था, इट वाज टोटली फॉरेस्ट एरिया, ओनली अ स्मॉल विलेज यूज्ड टू बी देयर, वेसू गांव या अल्थान गांव, ऐसा ही होता था। ठीक है, वो पूरा फॉरेस्ट कवर था, यानी पूरे बहुत सारे पेड़ पौधे सब थे। बट नाउ व्हाट हैज हैपेंड, यू सी द वेसू हैज टोटली बीन ट्रांसफॉर्म्ड। वहां पे पेड़ पौधे आपको कम दिखाई देते, रोड एक्सपांशन है ना, एक्सपांशन ऑफ न्यू सेटलमेंट्स, लोगों के लिए रहने के लिए वो सब उसको साफ कर दिया, और वहां पे द हाउसिंग सोसाइटी हैज कम अप। ओके, सो एक्सपांशन ऑफ द सेटलमेंट्स और सिटीज, वी ऑल डू दिस, डिस्प्लेस द वाइल्ड एनिमल्स, और ये सबसे क्या होता है, वाइल्ड एनिमल्स बिखर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, forest land are being encroached for grass, fuel and grazing. Mark this as one point.
एनक्रोच का मतलब क्या है? किसी और की जमीन या किसी और का जगह हड़प लेना. So forest land are being encroached for what purpose? Grass, fuel or for grazing. ग्रास के लिए, यानी जो शेपर्ड्स होते हैं वो लोग कैटल को ग्रेस करने के लिए फॉरेस्ट में लेके जाते हैं, तो ग्रास के लिए. फ्यूल, कौन सा फ्यूल? घर पे खाना बनाने के लिए फायरवुड्स, फायरवुड्स के लिए, या फॉर ग्रेजिंग, या लेके जाते हैं. तो ये हम लोग अलग अलग तरीके से जो फॉरेस्ट का लैंड होता है वो ऑक्यूपाई, यानी वाइल्ड एनिमल्स का है पर हम वो ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं धीरे धीरे. नेक्स्ट पॉइंट, द फॉरेस्ट फायर engulfs many species. नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट के अंदर हम लोग दो पॉइंट अलग अलग, दो या तीन पॉइंट करके लिख सकते हैं. तो यहाँ पे दिस the second next point you can write it: the forest fire engulfs many species. This is the best example of Australian fire. If you remember last year, lots of animals, forest fire के कारण lots of animals and the species were taken away, were destroyed. Okay, now उसका explanation दिया है. When the forest fire occurs at the time of rearing the young ones of the birds or hatching the eggs, it creates a negative impact on the number of wild animals. यहाँ पे ज़्यादा explain किया है. अगर suppose forest fire एक ऐसे टाइम पे होता है जब रेयरिंग ऑफ, एक मदर है, मदर अपने बच्चों को जन्म देती है, उस टाइम पे होता है, तो वो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, सो द मदर में रन अवे और मदर में एस्केप, बट वो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं एनिमल्स के, वो शायद नहीं कर पाते हैं. ठीक है, इट बिकम्स, अगर वो लोग मर जाएंगे तो क्या होगा? नेक्स्ट जनरेशन वो उनका माप. तो वो, it is applicable to all kinds of animals, all, whether it is a bird, insect or any other creature, it applies to all. Or during the hatching of the eggs, maybe some animals are just about to go to give birth, maybe in few days time or few weeks time. तो ऐसे टाइम पे क्या होगा? द फायर, इफ द फायर हैपेंस, इट टेक्स अवे द लाइफ ऑफ एवरीथिंग, यानी सबकी लाइफ डेंजर में हो जाएगी. देयर विल बी नो लाइफ दैट विल बी लेफ्ट आउट, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. नेक्स्ट पॉइंट, एनगल्फ. एनगल्फ का मतलब सब कुछ खत्म कर देना, या सब कुछ निगल जाना, या सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देना, टोटली स्वीप आउट कर देना, टोटली डिस्ट्रॉय कर देना, वैसा. नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू लॉस ऑफ द नेचुरल हैबिटेट, मेनी एनिमल्स विदाउट एनी abode come into conflict with man and sometimes even lose their life. Now this is the next point. So here what happens due to the loss of the natural habitat? अभी एक particular animal के लिए एक natural habitat है, और वो natural habitat forest fire की वजह से खत्म हो गया हो, या हमने उस पे कब्जा कर दिया हो, और ठीक है, तो उनको वो घूमने फिरने की जगह नहीं मिलते, तो वो क्या कर देते? दे कम आउट ऑफ दैट, वो जगह छोटी पड़ती है तो वो बाहर आ जाते हैं, दे कम आउट एंड दे कम इन कॉन्टेक्ट विथ ह्यूमन. तो sometimes they attack human beings, but not every time they can win. So once they come out, it becomes very difficult. It is also very risky for them. Why it is risky? Because man may attack them and their life is again in danger. ऐसा हमारे इंडिया में बहुत सारे केसेस हुए हैं जहां पे वाइल्ड एनिमल्स दे हैव कम टू द ह्यूमन हैबिटेशन, जहां पे ह्यूमंस रहते उसके आसपास एरिया में आया है, और जैसे ही लोगों को पता चला है तो उन्होंने क्या किया? उसको मार डाला है. ओके, दिस हैज व्हाट हैज बीन हैपनिंग. द नेक्स्ट पॉइंट, hunting to produce biomedicine or things which make perfume also bring the species on the verge of extinction.
क्या है, हंटिंग करते हैं। हंटिंग किस लिए करते हैं? फॉर बायोमेडिसिन, मेडिसिन के लिए हंटिंग करते हैं। ठीक है, स्नेक फॉर एग्जाम्पल, स्नेक। अबॉर्ड, अबॉर्ड मीन्स होम। फॉर एग्जाम्पल स्नेक, हम लोग बोलते हैं स्नेक इज इज सम स्नेक्स आर वेरी पॉइजनस, बट द सेम पॉइजन कैन बी यूटिलाइज फॉर एज मेडिसिन, मेडिसिन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हंटिंग टू प्रोक्योर मेडिसिन या थिंग्स, ठीक है। या तो हम लोग वो परफ्यूम के लिए भी हम लोग यूज करते हैं, इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड टू मेक परफ्यूम ऑफ अदर एनिमल्स। तो वो परफ्यूम के लिए या मेडिसिन बनाने के लिए हम लोग हंटिंग करते हैं। एंड हंट करते 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 एक ऐसा टाइम आ गया है कि वो एनिमल क्या हो गया है, इट हैज कम टू द वेज दैट इट हैज कम टू एक्सटिंक्ट, वो खत्म होने को आ गया। ओके, अंडरस्टूड रीजंस फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। Now things to know, but this can come for 1 mark. Okay, that is why can be asked for 1 mark. Red panda. So this is red panda. Okay, where it is found? Cold forest. Where? Eastern Himalayas. Okay, what is the food? Bamboo, sprouts, eggs, small birds, insects, etc. Less active during the day. Less active during the day. यानी दिन को ये ज्यादा काम नहीं करता है. It does not come out. इंडिया के सिवाय कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार। ओके, नेक्स्ट वन। ओके, राइट डाउन द क्वेश्चन। State the measures of prevention of wildlife. State the measures of prevention of wildlife. Okay, here also you will be writing in points also. Points. Okay, mark the point. It is necessary to change our attitude and perception towards the forest. We consider it as a source of unlimited income, which is a mistake. It must be preserved. It is necessary to change our attitude and perception towards forest. Now, attitude and perception. Perception is the ability to understand, to be aware, to know, okay, towards the forest. We think that forest is going to give us everything. It is not going to end. There are many things that are available in the forest. हम लोग जितना लेंगे उतना फॉरेस्ट हमें और देता ही रहेगा, ऐसा होता नहीं है। हमें भी अंडरस्टैंड करने के फॉरेस्ट एक हद तक ही हमें दे पाएगा। जब अगर हम लोग उसको काटते ही रहेंगे तो हमें कुछ मिलने नहीं वाला है। ठीक है, उसके सामने उसको कुछ देना भी पड़ेगा। सो हियर वी इट इज नेसेसरी टू चेंज अवर एटीट्यूड। हमें चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरी है। हम उसे क्या समझते हैं? एक अनलिमिटेड इनकम है, बट इट इज नॉट अनलिमिटेड इनकम। इफ यू गिव देन ओनली यू विल गेट। तो इसीलिए हमें फॉरेस्ट को बचाने की जरूरत है। वी नीड टू प्रिजर्व द फॉरेस्ट। ओके, ओनली देन द नेचुरल हैबिटेट्स फॉर वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव। अगर हम लोग फॉरेस्ट को बचाएंगे तो ही क्या बचेगा? वाइल्ड लाइफ बचेगा। अंडरस्टूड? ओके, अगर हम लोग फॉरेस्ट को बचाएंगे तो ही हमारे जो वाइल्ड लाइफ, जो वाइल्ड एनिमल्स है, वो सब बच पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, मेंटेन द बैलेंस
balance of number between the herbivorous and carnivorous in the forest. For this, steps like maintaining the water resource in the forest and restriction on grazing of domestic animals should be taken. Now here, मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है. क्या बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि हर्बीवोरस और कार्निवरस एनिमल्स का जो बैलेंस है वो मेंटेन करना जरूरी है. अगर हम लोग ऐसे बोलेंगे फॉर एग्जांपल कि कार्निवरस एनिमल्स आर डेंजर टू द ह्यूमन लाइफ, तो चलो सारे कार्निवरस एनिमल्स को मार डालते हैं, तो उससे कोई हम लोग सेफ हो जाएंगे? We are not going to be safe. For why? Because there is a food cycle that is there. You have studied in science. There is a food cycle, chain cycle or food cycle. तो food cycle में कैसा होता है? तो what is food cycle? One animal is depending on another animal, and that animal is depending on another. There is a chain of it. In the same way here, if we kill all the carnivorous animals, the herbivorous animals will be in more number. अगर उसका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, so what they will do, they will eat away the forest. ठीक है, फॉरेस्ट में प्लांट्स, वेजिटेबल्स जो भी कुछ होगा उनको कम पड़ेगा, क्योंकि सब जगह पे आर पार सब जगह पे क्या है, ओनली हर्बीवोरस एनिमल्स आर देयर. तो अगर हर्बीवोरस एनिमल्स ही रहेंगे तो उन लोग वो लोग ही फॉरेस्ट को खत्म कर देंगे. ओके, so there is no balance, so it will not be helpful. So if I say that only carnivorous animals should be there, चलो herbivorous animals को खत्म कर देंगे, तो अभी carnivorous animals को खाने के लिए, हंट करने के लिए वो किस पे आएंगे? If they are not getting their food, what they will do, they will attack on us. वो हम पे अटैक करेंगे. तो again it is not balanced. So there should always be a balance between all the things. That is carnivorous animals and herbivorous animals, दोनों में अच्छा balance होना चाहिए. Okay. For this, steps like maintaining water resources in the forest and restriction on grazing domestic animals should be taken. Water resources को maintain करना जरूरी है. ठीक है, in the forest, यानी pond, lakes, rivers, ये सब बहुत होना जरूरी है. And restriction on grazing of domestic animals. Domesticated animals को हमको थोड़ा restrict करना पड़ेगा. उनके लिए खाना कुछ हम लोग और तरीका find out करना पड़ेगा. Where hay can be given to them, dry grass, okay, and fodder can be given to domesticated animals rather than taking all those animals to the forest for grazing activity. So we can take steps. Okay. Next point. There should be strict laws to ban hunting. Those laws should be implemented very harshly. Heavy punishment should be inflicted for illegal mining in forest and a fine should be imposed. Right? क्या point बोला है यहाँ पे? बैन होना चाहिए, हंटिंग पे बैन लगा देना चाहिए. बैन का मतलब क्या है? बैन मीन्स a completely no. You cannot hunt any animal. So there should be stricter rules. Laws should be framed in such a way that no one can hunt any animal. And if someone is found doing it, very strict law should be there, or a heavy punishment should be provided to all those persons. And the best example is, everyone knows, I guess, Salman Khan. Salman Khan was punished for killing of a black bug. Okay, so he killed a deer during some 1996 or 1997 when he was shooting. We don't know whether he shot or not, but there was a strict rule, whether you are a big personality or not, whether you are a small person or a big person, you cannot kill any kind of animals. Okay, so you must understand that. Now, there are other rules also. Heavy punishment should be inflicted for
illegal mining in the forest area. Illegal mining means without permission of the government you mine. अगर minerals के लिए आप लोग माइनिंग करते हैं, ठीक है, जमीन के अंदर खोदम खादी करके या ड्रिलिंग करके हम लोग मिनरल्स फाइंड आउट करते, तो वो विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, then there should be a punishment, and along with it a fine should also be given. Understood? Next, it is necessary to make such arrangements which would not disturb the animals during their procreative period. Now, making arrangements which would not disturb the animals, which would not disturb means why the animal should not be disturbed during the procreative. Procreative का मतलब होता है reproduction का time होता है. Every animal has a reproduction period. For example, अभी rainy season चल रहा है, तो rainy season में the government has said that कि no fishing should be done. आप सी में जाके फिशिंग नहीं कर सकते हो. तो क्यों? क्योंकि ट्रोलिंग का पीरियड होता है. मींस फिशेस का रिप्रोडक्शन का पीरियड होता है. तो ये रिप्रोडक्शन के पीरियड में आप जाके क्या नहीं कर सकते हो, उसको फिशिंग नहीं कर सकते हो. अगर आप फिशिंग करोगे तो फिशेस नेक्स्ट ईयर के लिए आपको फिशेस मिलेंगे ही नहीं. तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो अंडरस्टैंड करती है कब कौन सा पीरियड होता है कौन सा एनिमल का प्रोडक्शन का, रिप्रोडक्शन का. उस पीरियड के लिए उन लोग क्या कर देते हैं, दे वुड पुट ऑन बैन टू इट, और दे वुड पुट रिस्ट्रिक्ट, एक रूल ऐसा फाइंड कर देते हैं कि ये 1 महीना आपको जाना नहीं है. तो दे फॉलो इट, दे हैव टू फॉलो इट. अगर कोई ये रूल को फॉलो नहीं करता है एंड देन दे गो, देन heavy fine or even their license is restricted. समझ में आ गया? So we are not supposed to disturb the animal during their procreative period, that is reproduction period में हमें animals को disturb नहीं करना चाहिए. Next, a study should be made about the likely effects of fisheries, forest gatherings and tourism in the forest, and steps should be taken accordingly. So a study should be made. Study of what? Fisheries. जैसे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, फिशरीज डिपार्टमेंट का. फॉरेस्ट गैदरिंग, फॉरेस्ट में एक ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स गैदर होते हैं, ठीक है. फॉरेस्ट गैदरिंग, या हम लोग हमको नहीं जाए, टूरिज्म प्लान नहीं करना चाहिए पर्टिकुलर पीरियड में. यू शुड नॉट प्लान टूरिज्म, and accordingly the government should take steps कि this time is accurate to go for tourism purpose. टूरिज्म पर्पस के लिए कि ये मंथ से ये मंथ आप टूरिज्म के लिए जा सकते हो. 9th में आपको कूर्ग नहीं, 10th में, तो कुछ कुछ प्लेसेस में है ना एक स्पेसिफिक टाइम दिया देता है कि ये टाइम से ये टाइम टूरिज्म के लिए बेस्ट है, आप जाओ और टूरिज्म एंजॉय करो. So such time should be made so that the animals are not disturbed in any way. Okay. Next point. Programs should be arranged to bring widespread awareness in the society. Okay. Awareness should be made in the society. And the last point, if the wildlife protection force is inactive, then pressure should be brought on them and this work should be given priority. That means there are groups, there are NGOs, there are people who are under this wildlife protection force. ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फोर्स के अंदर इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट ने उनको अपॉइंट किया है. कई बार क्या होता है, दे आर नॉट वर्किंग एट ऑल, दे सिट एट होम एंड अर्न मनी, और दे फॉर नेम सेक दे गो एंड डू द वर्क.
एंड इफ दे आर फाउंड टू बी इनएक्टिव, इनएक्टिव का मतलब उन लोग काम नहीं करते ढंग से, अच्छे से उन लोग काम नहीं करते, then government or higher officials should pressure them. Okay, they should pressurize them so that they can go out and work, and they give priority to the work that has been asked them to be done. यानी उनको जो कहा गया है, उनको जो वर्क दिया गया है, वो काम उनको टाइम पे करना पड़ेगा. प्रायोरिटी यानी इंपॉर्टेंस, पहले इंपॉर्टेंस उसको ही देना चाहिए. वर्क शुड बी गिवन प्रायोरिटी, यानी उनका जो काम है उसको सबसे ज्यादा पहला इंपॉर्टेंस देना चाहिए. ओके, समझ में आ गया? एनी डाउट्स हियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गंगा रिवर डॉल्फिन. इट इज दिस, ये भी 1 मार्क के लिए आ सकता है, ठीक है, थोड़ा ध्यान दे देना. तो वेयर इट इज फाउंड? इन ब्रह्मपुत्र एंड गंगा, and it is a fresh water species. Now where does it live? It lives in the river having deep and calm water flow. रिवर में आपको डॉल्फिन्स देखने को मिलता है. तो कौन से रिवर में है? ब्रह्मपुत्र और गंगा में आपको देखने को मिलता है. और कैसे रिवर्स में आपको फाइंड आउट करने को मिलेगा? Those rivers which are deep and calm. Now it is found in Ganga river, which flows through one of the densely populated regions of the world. अब ये गंगा रिवर में आपको देखने को मिलता है डॉल्फिन. But what is the reason? Due to the release of dirty water in the river, sedimentation, due to deforestation, fisheries, navigation in the river, industrial waste, ये सब के कारण उसकी लाइफ एक डेंजर हो गई है. Its life has become a danger. And from Ganga and Brahmaputra rivers, there are only few such dolphins left in Chambal river. सेडिमेंटेशन का मतलब सॉइल इरोड होके आना, और रिवर के गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर दे कम फ्रॉम हिमालयास. तो वहां से जब वो फोर्स में आते हैं तो क्या होता है, सॉइल को भी साथ में लेके आते हैं, एंड इट सेडिमेंट्स नियर द प्लेन एरियाज. जहां पे प्लेन एरियाज होगा वहां पे आके वो रुक जाएगा. तो सेडिमेंटेशन के कारण क्या होगा, उसकी डेप्थ चली जाती है. डेप्थ ऑफ द रिवर इज लॉस्ट. ओके, डेप्थ ऑफ द रिवर्स इज लॉस्ट ड्यू टू डिफोरेस्टेशन, यानी फॉरेस्ट को कट करके सॉइल वो इरोड होके आ जाती है. बहुत ज्यादा तादाद में फिशरीज होता है, फिशिंग होता है, तो ऐसा हो सकता है. फिर देन इंडस्ट्रियल वेस्ट. इंडस्ट्रियल वेस्ट का मतलब क्या है? बहुत सारे इंडस्ट्रीज में से वेस्ट, जो हमारे तापी रिवर को हम लोग आज जाके देखो तो आपको पता चलेगा कि तापी रिवर की डेप्थ तो है ही नहीं. समर सीजन में बेस्ट टाइम होता है देखने का. ऐसा लगता है कुछ सालों के अंदर ये ब्रिज जितने बने उसकी कोई जरूरत नहीं है. आप आराम से ताप्ती के ऊपर से चल के जा सकते हो, क्योंकि पानी तो एक स्ट्रीम जैसा हो गया है, तो आप आराम से चल के जा सकते हो. समर सीजन की बात कर रहा हूं. सो द डेप्थ इज नॉट देयर. ओके, एंड बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैज हैपेंड, ओनली अ फ्यू डॉल्फिन्स आर लेफ्ट इन चंबाल रिवर. नाउ इसकी ये क्या करता है, कैसा होता है, ये देखो. नेविगेशन इन द रिवर मीन्स, नेविगेशन का मतलब क्या है? एक जगह से दूसरी जगह जाना. रिवर्स का यूटिलाइज करते हैं ना हम लोग ट्रैवलिंग पर्पस के लिए, उसको कहते हैं नेविगेशन पर्पस.
It comes to the surface to very often to breathe making su like sound. To breathe it comes to the surface. ऐसे बाहर आता है वो. Okay. To breathe. उनके अलग अलग नाम है, सोनस, सुसु और स्विस. It is also found in the neighbors Nepal and Bangladesh. अभी एट प्रेजेंट इसकी सिचुएशन क्या है? इज इन डेंजर. गंगा रिवर डॉल्फिन इज इन डेंजर. अभी रिसेंटली जो लॉकडाउन था तभी एक वहां के आई गेस द कलेक्टर हैड पोस्टेड गंगा रिवर का. गंगा जो प्रदेश है वहां के जो कलेक्टर थे उन्होंने पोस्ट किया था कि देखो डॉल्फिन देखने को मिल रहा है गंगा रिवर में, जो एक्सटिंक्ट हो गई थी वो. तो सी ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन कोई पोल्यूशन नहीं हुआ, कोई फिशिंग नहीं हुआ, सब कुछ धीरे इट वाज कमिंग बैक टू नेचर. एंड बिकॉज इट वाज कमिंग बैक टू नेचर यू कुड सी सच एनिमल्स बैक. समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट. Describe the various process of project of wildlife. Describe the various projects of wildlife. Now here various projects of wildlife means to protect these wildlife. There have been many projects launched by the government of India. So we are going to study about all those projects. Okay. Now here the some schemes are implemented in India to protect the wildlife. Now some projects are started. So we will be learning about all those projects. Okay. Which are लाइकली टू बी एक्सटेंड इन नियर फ्यूचर. यानी जो ऐसा लग रहा है गवर्नमेंट को, ऐसा लग रहा है कि ये नियर फ्यूचर के अंदर क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा. डिस्क्राइब द वेरियस प्रोजेक्ट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ. डिस्क्राइब द वेरियस प्रोजेक्ट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ. लिखा तानिया? So first one, this is an important one, Tiger project. This is important, okay? Tiger project. एक estimation था, there were more than 40,000 tigers in India in the beginning of the 20th century. एक estimation था कि there were more than 40,000 tigers beginning of the 20th century. अभी कौन सा century है? 21st century. तो 20th century में ऐसा था. Due to unrestricted illegal hunting and deforestation, there was a big danger for the existence of tiger. The project to save tigers was started in the year 1971.
A series of steps were taken to keep their natural habitat protected and to maintain ecological balance at national level. Why was this project started? To keep their natural habitat protected and to maintain ecological balance at national level. Okay, ये आपका एक क्वेश्चन हो गया. In how many places was this project implemented? कितने जगहों पे implement किया था? 44 regions. कितने regions? 44 regions. हो गया? Finished? Next one. Leopard. Leopard belongs to which family? Cat family. ठीक है? Leopard, tiger, lion, all belongs to which family? Cat family. It hold a small stature compared to a lion and tigers. Stature का मतलब क्या होता है? Height. यानी अगर आप कंपेयर करो लायन और टाइगर को तो उसके कंपैरिजन में ये कैसा है? हाइट में थोड़ा छोटा है और पतला है, और उसके कारण ये लेपर्ड क्या कर सकता है? ट्रीज पे चढ़ सकता है. लायन और टाइगर ट्रीज पे चढ़ नहीं सकते क्योंकि उनकी बॉडी हेवी है. ओके, तो ये लोग ट्री के ऊपर तक चढ़ सकते हैं और ये हर जगह पे फाउंड है. इट इज फाउंड इन डार्क ब्लैक कलर. अभी रिसेंटली आपने देखा होगा वो पिक्चर बहुत वायरल हुआ था, शाहनाज ने क्लिक किया था. शहास एक फोटोग्राफर है, उन्होंने क्लिक किया था. द ब्लैक पैंथर, देयर इज अनदर नेम फॉर इट. मोगली मूवी देखा होगा तो पता होगा पैंथर के बारे में. तो लेपर्ड, पैंथर, दे ऑल कम सेम. कहाँ पे लार्ज नंबर में फाइंड आउट होता है? इन द फॉरेस्ट ऑफ गुजरात. एंड ऑफन कम्स टू ह्यूमन सेटल्समेंट. ह्यूमंस जहाँ पे रहते हैं वहां पे आ जाता है. और पीपल अननोइंगली दे टेल इट एज, कॉल इट एज चित्ता. उसको चित्ता करके बुलाते हैं, पर वो चित्ता नहीं है, वो इट इज अ लेपर्ड. ओके, चित्ता, you may be knowing that it is the fastest animal, है ना? एक ऐड आता था माउंटेन ड्यू का, चित्ता भी पीता है पर चित्ता बहुत तेज भागता है. चित्ता इज वन ऑफ द फास्टेस्ट एनिमल. ठीक है, इट इज टोटली एक्सटिंक्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया. खत्म ही हो गया है. चित्ता आपको देखने को मिलेगा ही नहीं. इट इज फाउंड इन अफ्रीका इन इट्स नेचुरल हैबिटेट. अफ्रीका में आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, इन इंडिया इट इज फाउंड इन अ कैप्टिव स्टेट ओनली. जू के अंदर. कैप्टिव स्टेट का मतलब एक पिंजरे के अंदर आपको देखने को मिलेगा. आपको चित्ता बाहर घूमते हुए उसकी नेचुरल हैबिटेट में आपको देखने को मिलेगा नहीं. ओके, हो गया. नेक्स्ट, नेक्स्ट इज टाइगर एलिफेंट प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया था ये याद करना है. दिस इज द थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर. Which year it was started? In the year 1992. What is the main objective? To provide the
elephants protection in their natural habitats and to protect habitat to their migratory corridors. और आज कितने प्रोटेक्शन है? 26 प्रोटेक्शन जोन्स फॉर एलिफेंट्स इन द कंट्री. After the implementation of this project, there has been an increase in the number of elephants in the forest. The maintenance of the domesticated elephants. Migratory corridor का मतलब एक जगह से दूसरी जगह एलिफेंट्स क्या होते हैं? माइग्रेट करते हैं. जैसे हम लोग देखो, मेरे पेरेंट्स कहाँ के हैं? केरला के. तो दे हैव माइग्रेटेड टू सूरत, गुजरात. ठीक है. वैसे एनिमल्स भी क्या करते हैं? माइग्रेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करके जाते हैं. ठीक है. और उनका जो रास्ता होता है तो वो कॉरिडोर, तो माइग्रेटरी कॉरिडोर. तो यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह. और आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ने ये एलिफेंट को एज पेट रखते हैं. कुछ कुछ मंदिरों के सामने पूजा पाठ होता है तो मंदिरों के सामने होता है, वो एलिफेंट्स को लेके आके रखते हैं. तो वो सब टेम किया हुआ एलिफेंट्स है. अगर वो टेम किया हुआ एलिफेंट्स, वो जो भी ऑनर है वो अच्छे से उसका ख्याल नहीं रखता है, देन उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है. समझ रहे हो? एक एलिफेंट को रखना इजी टास्क नहीं है. एलिफेंट को बहुत सारा खाना चाहिए, उसके लिए प्रॉपर शेड होना चाहिए. ठीक है. उसको बेवजह रास्ते पे नहीं घुमाना चाहिए. ऐसे बहुत सारे नियम है. There are many rules and regulations, and if the owner is not able to fulfill, then he is at the risk. ठीक है. अगर वो नहीं संभाल सकता है तो गवर्नमेंट क्या करेगी? इंस्टीट्यूशन, ये एलिफेंट प्रोजेक्ट के जो इंस्टीट्यूशनल वर्कर्स जो होते हैं, जो उनके अंदर जॉब करते हैं या उनके उनके उनका एनजीओ होता है, वो लोग ये एलिफेंट को आके लेके चले जाते हैं. अंडरस्टूड? और रिसेंटली आपने सुना होगा न्यूज चैनल में रिसेंटली कि एक एलिफेंट मर गया था केरला में. शी वॉज प्रेग्नेंट, है ना. तो बॉम्ब ब्लास्ट उसने कुछ खाया था और उसमें एक्सप्लोशंस थे, इसके कारण हुआ था करके. सो उस पे भी सी सच काइंड ऑफ थिंग्स कैन नॉट बी लेफ्ट आउट. ऐसे सब प्रॉब्लम्स होते हैं. और बोत्सवाना में मैंने लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था, देयर वाज अ प्लेस नेम इन अफ्रीका, कंट्री नेम्ड बोत्सवाना, where around 350, more than 350 elephants died in a month. ठीक है. So all these things are there, and government is trying to protect all these animals under different projects. Okay. Next one, Rhino project. This project is started for the protection of one horned rhino of India. Most rhinos are found in Assam state. They are also found in less number in Sundarbans of West Bengal. Rhino Vision 2020, an increase of rhinos has been targeted at 3000 rhinos. 2020 एक विजन था कि 3000 rhinos होने चाहिए. But what happened in Assam, because of flood, many animals died, and in them the rhino also were part of it, and many rhinos also died. One horn, ये एक हॉर्न वाला राइनो है. There are other rhinos which are having two horns, दो हॉर्न वाले भी है. ये एक हॉर्न वाला है. ठीक है. कहाँ पे है? मार्शी रीजन्स ऑफ ब्रह्मपुत्र एंड सुंदरबंस. क्यों हंट किया जाता है इसको? फॉर प्रिपेयरिंग मेडिसिन. कहाँ से? हॉर्न में से. हर्बीवोरस एनिमल है.
बट प्रोटेक्शन के कारण उनके नंबर बढ़ गए. Finished? Next one, crocodile project. Crocodile and alligator. ठीक है. Alligator which are found in fresh water are on the verge of extinction in the decade of 1970. Government of India took timely steps to start this project. Okay. Next is vulture project. तो vulture is the, ये important है, is the cleanliness worker of the nature. Eats the meat of dead animals. 9 subspecies of vulture in India. And there has been an unusual decrease in its number. This project was started in the year 2004. Next one is snow leopard. ये कहाँ देखने को मिलता है? Found at an altitude of 3000 meters. 3000 meters से लेके 1000 मीटर कौन सा सॉइल आपको देखने को मिलता है? लास्ट कौन सा सॉइल है? किसी को याद नहीं है? देखो सॉइल वाला चैप्टर, फॉरेस्ट सॉइल. वेरी गुड. 3000 to 3100 फॉरेस्ट सॉइल. वेरी गुड. तो वो सॉइल में आपको कौन देखने को मिलता है? स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट. स्नो लेपर्ड. And it is in Himalayas. When was this project started? 2000. What was the purpose? To increase the knowledge about snow leopard among the local people, so that people could be aware to protect it. लिख लिया? Next one, next project are 6 के बाद कश्मीरी हंगूल प्रोजेक्ट. स्टैग जो होता है ना, डीर हम लोग बोलते हैं स्टैग. एक्चुअली स्टैग इज डिफरेंट देन डीर. तो कश्मीरी हंगूल प्रोजेक्ट. रेड पांडा प्रोजेक्ट. रेड पांडा तो हमने देखा था, बराबर. मणिपुरी तमिल प्रोजेक्ट. देन फॉर व्हाट? फॉर डीर इज फाउंड इन मणिपुर. गंगा डॉल्फिन प्रोजेक्ट तो हमने एक्सप्लेन कर दिया. Okay, done, finished. Now write a short note on sanctuary. Write a short note on sanctuary. तो यहाँ पे 3 things है. There are 3 things: sanctuaries, national park and bioreserve. There are differences in all these 3 things, and all these 3 things are done for the protection of wildlife. अगर डायरेक्टली हमें देखना जाएंगे यहाँ पे तो हमको ऐसा लगता है कि ये सिनोनिम है. दे साउंड डिफरेंट, बट देयर इज सम डिफरेंस एंड विल बी लर्निंग अबाउट दोस डिफरेंसेस. Sanctuary, human activities are permitted within certain limit. Till a certain limit, human activities are allowed. Okay, चलो चलेगा, काम चल रहा है चलने दो, कोई कुछ बोलेगा नहीं, काम चलने देते. Human activities are permitted. ठीक है. Domesticated animals are allowed to graze.
डोमेस्टिक एनिमल्स को वहां पे ग्रेजिंग की एक्टिविटी दी जाती है कि हाँ आप लेके जा सकते हो एनिमल्स को ग्रेजिंग एक्टिविटी के लिए, पर क्या लेना है? परमिशन फ्रॉम द अथॉरिटीज. Wildlife sanctuary is established for the protection of some species. The sanctuary can be established by the government after certain process. Sanctuary किस लिए बनाई जाती है? For the protection of some species. कुछ species के लिए, जैसे कि टाइगर या लायन और लेपर्ड. ठीक है, ऐसे कुछ स्पीसीज के लिए बनाई जाती है. और ये कौन सेटअप कर सकता है? गवर्नमेंट सेटअप कर सकता है. और कौन कौन से? पेरियार, चंद्रप्रभा, एटमानूर, ये सब फेमस सेंचुरीज है. पेरियार कहाँ पे है? केरला. मार्क करना है तो लिख लो, पेरियार इज इन केरला. चंद्रप्रभा इज इन यूपी. एटुनागरम इज इन तमिलनाडु. अरे सॉरी, तेलंगाना. तेलंगाना. पेरियार इज इन केरला. चंद्रप्रभा इज इन यूपी, उत्तर प्रदेश. एंड एटुनागरम इज इन तेलंगाना. फिनिश्ड? लिख लिया? ये मैप एक बार देख लेना बाद में, या तो हम लोग बाद में मैप करेंगे तो तब हम लोग थोड़ा ध्यान दे देंगे कि विच कौन सा पार्क और ये आता है करके. नेक्स्ट वन इज नेशनल पार्क. कंपेयर्ड टू सेंचुरी दिस इज मोर प्रोटेक्टेड जोन. इसको ज्यादा प्रोटेक्ट किया जाता है. इसके अंदर मोर देन वन इको सिस्टम इज इंक्लूडेड. एक से ज्यादा इकोसिस्टम इंक्लूड किया जाता है. देयर इज अ कंप्लीट बैन ऑन एनिमल ग्रेजिंग. यानी यहाँ पे बिल्कुल ही ग्रेजिंग के लिए हम लोग डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को लेके नहीं जा सकते. परमिशन भी नहीं मिलेगा. परमिशन लेने जाओगे तो परमिशन भी नहीं मिलेगा. इट इज नॉट सेंटर्ड अराउंड वन स्पीसीज एज इट इज इन सेंचुरी. सेंचुरी में क्या होता है? एक या दो ही होते हैं, एक उससे ज्यादा नहीं होता है. ठीक है, पर यहाँ पे सिर्फ एक के पीछे नहीं ध्यान देते, ज्यादा है. नाउ डन थ्रू द कोऑर्डिनेशन ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. दोनों का इसके अंदर पार्टिसिपेशन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट. काजीरंगा, कोबट, विलावदार, मराइन नेशनल पार्क, गिर, दाचीगाम आर इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स. और ये सब आप फाइंड आउट करोगे, काजीरंगा, कोबट, ये सब जो मैप दिया है उसके अंदर से आप फाइंड आउट कर सकते हो. यू कैन फाइंड इट आउट इजीली. इट इज गिवन देयर. एंड द लास्ट वन इज बायो रिजर्व जोन. The last one is bioreserve zone. It is formed according to international norms. International norms से बनाया गया है. ये दोनों क्या है? सेंचुरी एंड नेशनल पार्क हम लोग हमारे हिसाब से बना सकते हैं, पर बायो रिजर्व कैसा होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नॉर्म्स. पर्पस क्या है? नॉर्म्स यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस. is to protect the physical and cultural diversity of any region. Physical and cultural diversity of any region. Particular एक region का total उसका वहाँ पे जो culture है, physically हो या cultural diversity हो, सब protect करना है. यहाँ पे vegetation के साथ साथ insects and the land of that area, the lifestyle of the people living there is also protected. वहाँ का सिर्फ vegetation नहीं या वहाँ के सिर्फ इंसेक्ट्स नहीं, वहाँ की लैंड को प्रोटेक्ट किया जाता है,
इवन द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल, वहां पे जो लोग रहते हैं उनकी जो लाइफस्टाइल है उसको भी प्रोटेक्ट किया जाता है बायो रिजर्व जोन में. Now here special arrangements are created for research and training about bioreserve. All external human movements are totally restricted. ये एरिया में थोड़ा भी बाहर का कोई व्यक्ति यहाँ पे आ नहीं सकता है. कोई भी ह्यूमन मूवमेंट्स यहाँ पे कंप्लीटली रिस्ट्रिक्ट किया है, टोटली बैंड. एवरेज एरिया कितना है? 5000 स्क्वायर किलोमीटर. नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार, सुंदरबन, पंचमदी considered to be important bioreserves of the nation. Run of Kutch of Gujarat was a bioreserve zone in 2008 for the protection of its special environment conditions. हो गया? ठीक है, ये आप कर सकते हो. इंडिया में कितने हैं बायो प्रोटेक्ट जोन? 18. नेशनल पार्क 103, सेंचुरी 531. गुजरात में 1, 4 और 23. Development progress is inevitable, but along with it, it is necessary that we keep in mind all its ill effects in the entire life system while planning. Every one species is completely destroyed or in danger as a result of the disturbance of the food chain. Disturbances in the food chain are far-reaching. In food chain, every insect has a specific role. Right or wrong? हर इंसेक्ट को उसका खुद का एक रोल होता है. फॉर एग्जाम्पल दैट छोटा जो इंसेक्ट होता है दैट इज ईटन बाय ग्रास हॉपर. द ग्रास हॉपर मे बी फेड बाय अ फ्रॉग. द फ्रॉग कैन बी ईटन बाय अ स्नेक, है ना. स्नेक कैन बी ईटन बाय अ बर्ड, राइट. तो वो पूरा साइकिल होता है. तो वो साइकिल वैसे ही मेंटेन करना है. यानी इसका मतलब क्या हुआ? एवरी इंसेक्ट, छोटे से छोटा इंसेक्ट भी क्या है, उसका एक स्पेसिफिक रोल होता है. इफ अ लाइफ इज लॉस्ट द एंटायर स्ट्रक्चर एक्सपीरियंसेस डिस्टर्ब. यानी इसमें से कोई भी एक चीज लॉस्ट हो गई तो एवरीथिंग इज डिस्टर्ब. तो यहाँ पे सब कुछ प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा. If one species is removed, the natural system breaks down in the long run. यानी वो भी क्या होगा कि एक स्पीसीज को हम लोग निकाल देते. चलो फॉर एग्जांपल ग्रास हॉपर को निकाल दिया, या फिर हम लोग बोलते स्नेक्स को निकाल देते हैं. तो वो पूरा जो सर्कल है फूड चेन का, वो उसमें कोई ब्रेक आ जाएगा. और वो ब्रेक के कारण वो प्रॉब्लम अब अभी नहीं करेगा तो बाद में जाके तो करने ही वाला है. Okay. These effects reach man very late, hence we are not aware of it. The environment dangers which we are not following are the results of carelessness development before decades. If we have planned development, there will not be any problem. Friendly approach with the environment is the need of the present day. ये सबके दिमाग में होना चाहिए. We should be friendly with everything. खाली हम लोग दोस्तों से ही फ्रेंडली रहेंगे ऐसा नहीं. दुश्मनों से भी फ्रेंडली रहना पड़ेगा. इकोलॉजिकल सिस्टम से भी फ्रेंडली रहना पड़ेगा. ओके.
If we save nature, we are going to save ourselves. If we are going to destroy them, even the wild animals, then definitely we are also going to be disturbed. The next endangered species is Henotaro taro. It lives in arid and semi-arid regions, having alkaline forest and grassland, deserts or semi-desert area. कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? Lives in greater and the smaller run of Kutch, Bani, नारायण सरोवर सेंचुरीज. कैसे पता चलेगा? इट इज टॉलर देन द फॉक्स, हैज फ्रेशी राउंड माउथ एंड हैज हाई ईयर्स. किसको हंट करते हैं? स्मॉलर बर्ड्स एंड एनिमल्स. इट्स एक्सिस्टेंस कैन बी नोन बाय इट्स फुटप्रिंट्स. उसका फुटप्रिंट्स पे से हमें पता चलता है कि हाँ भाई ये जिंदा है, ये दिखता है, इसका एक्सिस्टेंस है करके. And the last point, इनविटेबल. इनविटेबल का मतलब होता है कि जो होने वाला है. हम लोग बोलते हैं ना कि ये होके ही रहेगा. ठीक है, ये चीज को हम लोग क्या कह सकते हैं? अनअवॉइडेबल है, वैसे सर्कमस्टेंसेस उसको कहते हैं. तो यहाँ पे वो पॉइंट है. डेवलपमेंट प्रोसेस इज इनविटेबल. डेवलपमेंट हमेशा होता ही रहेगा. हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं होगा करके. होगा ही. वो अनअवॉइडेबल है, यहाँ वो होता ही रहेगा. द लास्ट वन, डुगैंग. What is this? An aquatic animal. Very small numbers along the western coast of India. Western sea coast कौन सा है? Which sea can you find it in the western sea coast? Nobody. वेस्टर्न में कौन सा सी है? वेस्ट साइड. हाँ बोलो, जवाब दो. हाँ हाँ, अरेबियन सी, राइट. So you can find this animal in the western sea coast. ठीक है. It is also found along the sea coast of East Africa, Southeast Asian seas, and in the northern coast of Australia. Sea grass and vegetation is its main food. ये देखो, इसका मुंह थोड़ा काऊ जैसा है. But occasionally it also eat aquatic animals, widely hunted for its meat and fat. ये कहाँ पे आपको पहले फाइंड आउट था? फ्रीक्वेंटली अलोंग द गुजरात सी कोस्ट, अलोंग सौराष्ट्र कोस्ट. पर ये आज बहुत रेयरली सीन है, यानी ये भी एक्सटिंक्ट हो गया है. ओके, एनी डाउट्स? ठीक है. आपको नए चैप्टर का एग्जाम कौन सा है पता चला? ये मंथ एंड में होगा स्कूल में से. नहीं पता? ओके, नो प्रॉब्लम. आई विल बी सेंडिंग द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर. हाँ, सेकेंड चैप्टर जो भी है धीरज में आपको और हाँ, मैं भी तो बोल रहा हूँ सबके स्कूल में होने वाला है यूनिट टेस्ट. ठीक है, जैसे अभी तुमने 25 मार्क्स का जो एग्जाम दिया, वैसा एक दूसरा टेस्ट भी आएगा ये मंथ एंड में, तो वो भी आपको पता चलेगा. हाँ, चैप्टर्स मेरे को भी जैसे पता चलेगा मैं आपको बताता हूँ. ठीक है, अभी तक जितना पढ़ा है वो पढ़ाई चालू रखो सारे सब्जेक्ट्स की. अभी जो हो गया है वो तो नहीं होने वाला, यानी एसएस और मैथ्स नहीं होगा, बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स होंगे, तो उसकी तैयारी करो. ओके.